without further ado, we invite our next speaker. So I'd just like to give an introduction about him. His name is Sri Sanjay Patil sir. He has been working with BIF for the past 17 years. And by education, he's a chemical engineer. Okay, so it might sound a bit funny. So chemical engineer, but for past 17 years he is working with BIF, and his expertise is actually in indigenous crop diversity and conservation. So just like Sanat Kaur was saying, he's the person who went around, not only he works in Maharashtra, he also works in different places in Gujarat as well as Odisha, finding out very indigenous crops, varieties, and then propagating them through seed banks. Through his combined effort now, Govardhan Eco Village, our Govardhan Rural Development, we have also developed and established seed banks in villages, what we call as community seed banks. So farmers who actually produce seeds, now they have a seed bank. Some of you may be knowing or not, maybe knowing, I'm not sure, but generally when farmers, they purchase seeds to grow a crop. So that only works for that season. After whatever is grown, those seeds you can't grow them again. So then again they have to go and purchase the seeds. But what we have, or what we are trying to do with establishing community seed banks is that they can select indigenous varieties. So without further ado, we'd like to invite Sri Sanjay Patil sir to speak about biodiversity and conservation. Good morning, and today is a great day for us also, because first time we are going to interact all the work which we are doing at grassroots level with the grassroots level scientists who are the innovator over there in the field in the interior parts of the country. So just I want to introduce about my organization. I am working with BIF. BIF is non-government organization working in 13 states of a country since last 55 years, and started by Mahatma Gandhi ji, and we had a research at Pune, and some of you might know the naturopathy center near to Pune, and it's a foundation of BIF, and I'm with BIF since last 17 years, and some of them ask why you are in BIF and what you are doing these things, chemical engineering to sustainable agriculture things. So that's why I just want to say few. After completion, I BTech in chemical engineering from ICT. I was in as a scientist, and it was a great days for me. I was in research on natural cotton dyeing and finishing, and unfortunately there was an accident in a laboratory, and it has changed my on the way of life, and naturopathy and cow urine therapy cured masses. And that time also I face problem that I am a chemical engineer, then I had done my management degree, but I had no any agriculture degree. But good things happened. I had got an institute like BIF, and where there is no scope for a degree to work only with the communities and in the interior parts of the country. So I had started my journey from Jawar, where still now I had a base there, and then now in different parts of a country with different tribal communities on different program areas around agro biodiversity. So initially I had also had a thought when I came to Jawar. Jawar is around 120 kilometers from Mumbai. It's a very near, but unfortunately still there are number of issues: malnutrition, then poverty, then related to agriculture there are number of problems, though it's much nearer to Mumbai. So one side prosperity is there, and one side problems are also very near to us.
So when I gone to Jawahar in 2005-6, I had a thought I will change the things, and only technology is the solution to come out of all these problems. But within 2 years, I have found I come to know that only technology cannot solve our problems, number of problems, social, economical, ecological, everything. Then I had a discussion with the communities. That time, as an engineer, I started to work on soil health, because soil is very important, and only solving the problem of soil fertility, we can change everything. That is my mind. And I was searching for different technologies, different advances, and the type of rice, millets, beans, vegetal, climate resilient type, nutritionally rich type, good food, good quality, taste, and then number of things. And she had conserved that diversity, and that there we had started a program in 2014, and then scientific data pura aa gaya. Then BBC had taken a news, and then worldwide famous हो गई, seed mother of India. एंड लास्ट ईयर सी एड. सो वो तो स्कूल में कभी गई नहीं, सी ऑल्सो उसको मराठी भी ठीक से नहीं आता है. But because the wisdom, role of wisdom is there, scientifically genomic, then molecular genetics, and the nutrition, everything we had done, but the base knowledge उनका दिमाग का है. तो ऐसे देर आर नंबर ऑफ ग्रास रूट इनोवेटर इन द कंट्री. इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि ये ग्रास रूट इनोवेटर जिंदा रहेंगे तो ही ये डाइवर्सिटी बचेगी, एंड वी विल गेट अ फूड टू ईट. तो एक स्टेटमेंट है हमारे गुरुजी IIM के, उनका, कि माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स. माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट, क्योंकि हमने तो बहुत सारे डिग्रीज ले रखे हैं, लेकिन और हमारा अप्रोच थोड़ा नैरो हो गया है. तो डाइवर्स अप्रोच के लिए अगेन बैक टू द पीपल एंड बैक टू द कम्युनिटी. नेक्स्ट प्लीज. सो इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री. जैसे राइस के बारे में मैंने बताया 2 लाख टाइप्स, वैसे ही फॉर ऑल अदर क्रॉप्स. नेक्स्ट प्लीज. सो कल्चर के साथ पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है. हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इट इज अ कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है. सीड ये चीज शेयर एंड एक्सचेंज, नॉट फॉर अ सेल. जहांगीर जो वन ऑफ द ग्रेट बॉटनिस्ट थे, उनके इसमें एक लॉ था कि आप ग्रेन बेच सकते हैं लेकिन नॉट सीड बेच नहीं सकते. सीड बेचेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे. यानी इतना विजडम स्ट्रांग था. सीड कंजर्वेशन, सॉरी, सीड शेयर एक्सचेंज में जेंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था. देन उसके बाद इसको बेचा नहीं जाता था. कोई कास्ट, अपर कास्ट, मिड, लोअर कास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था. कोई भी कौन सा भी सीड लेके जाते थे. तो ये सीड का ये है. तो ये सारा नॉलेज कैसे रखा था सिंस ईयर्स ये लोगों ने. तो इन पेंटिंग्स, लास्ट का जो पेंटिंग है वारली पेंटिंग, हमारे बहुत सारे PhD के थीसिस एक ही ये पेंटिंग पे हो सकते हैं, क्योंकि पूरा राइस सीड का सोइंग, हार्वेस्ट, रेसिपीज और सब इसमें है. पूरा नेचर इसमें, एक भी ऑब्जेक्ट इसमें नॉन लिविंग है. जो हर एक चीज में कोई जान इसमें है. तो ये एक ही पेंटिंग. देर आर नंबर ऑफ फेस्टिवल्स इन द कंट्री. बीच का जो फोटोग्राफ है ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का है. वहां पे एक हिल है, उसका नाम है अस्तंबा हिल. अस्तंबा मीन्स अश्वत्थामा. ओके. तो सिंस ईयर देर इज अ फेस्टिवल. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ सीड. महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश का बॉर्डर का वो प्लेस है, और वहाँ पे वो फेस्टिवल होता है. कब? दिवाली के बाद 4 डेज का. एंड जो भी हार्वेस्ट होता है, न्यू हार्वेस्ट ऑफ दैट, तो वो ऑफरिंग करते थे गॉड को, यानी अश्वत्थामा को. ठीक है. वहाँ कोई टेम्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मोर देन 1.5 लाख लोग वहाँ पे आज भी आते हैं. और शेयर एंड एक्सचेंज ऑफ सीड पहले चलता था, अभी तो बहुत कम हो गए हो. एंड वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को जिंदा रखने का फेस्टिवल था. यानी विजडम कितना स्ट्रांग था कि इवोल्यूशन हो रहा है नेचर में, तो वो शेयर एक्सचेंज भी हो विद इन पॉपुलेशन. जैसे जेनेटिक्स में हम बात करते हैं, सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ट्रेड जीन्स, वो सारा एक्सचेंज एंड जो भी ऑफरिंग होता था,
एकदम बेस्ट क्वालिटी मेज का कॉब, सोरगम का बेस्ट कॉब जिसको गुड अच्छा यील्ड है, पेस्ट डिसीज रेजिस्टेंट है, गुड क्वालिटी। एंड ऐसा ऐसे ये फेस्टिवल्स हमारे थे। तो ये सारा नॉलेज जो है फेस्टिवल्स में, रिचुअल में, पेंटिंग्स में, उस वो तरीके से उन्होंने ये नॉलेज को भी जिंदा रखा था और ये बायो रिसोर्सेज की। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। सो देयर इज नीड टू रिवाइव दिस ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट प्लीज। प्रभु जी ने भी बताया कि डाइवर्सिटी लॉस कितना हुआ है। फ्रॉम 4 लाख प्लांट स्पेसीज से 3 क्रॉप्स तक आ गए हम। 4 लाख प्लांट स्पेसीज एस्टिमेटेड है वर्ल्ड वाइड। 30 अराउंड 3 लाख स्पेसीज थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन है। ओनली 30,000 उसमें 30,000 एडिबल है और 7,000 अंडर यूटिलाइजेशन है। उसमें से 200 का ही डेटाबेस साइंस आज तक बना चुका है और वो 200 में से 30 पूरा वर्ल्ड को अनाज दे रहा है और उसमें 3 में अभी इतना ये लेवल तक वो 3 है। जैसे बताया कि एक है कॉर्न, सेकंड है मेज एंड थर्ड इज व्हीट। हमारा अराउंड 65% फूड प्लेट ये 3 फूड आइटम से भरा हुआ है। तो हमारा फूड प्लेट का डाइवर्सिटी कितना कम हो गया है। हमने एक सर्वे लिया था विथ स्कूल्स कि बच्चों को बताया यू कैन गो इन योर होम एंड आस्क ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आप क्या खाते थे। द प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 नेक्स्ट डे कि आपके फादर एंड मदर के साथ बैठो एंड देन यू कैन प्रिपेयर अ प्लेट। आप क्या खाते थे, देन मैं क्या खा रहा हूँ। ये तीनों प्लेट का कंपैरेटिव स्टडी किया। फादर एंड मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का प्लेट जो था, फूड प्लेट था, अराउंड 65 फूड ग्रेन्स थे। उसमें सीरियल्स थे, पल्सेस थे, ऑयल सीड्स थे, उसमें भी सीजनल वेरिएशन था, रीजनल वेरिएशन था, ठीक है ना। उसके डिफरेंट रेसिपीज थे, विद इन क्रॉप डाइवर्सिटी थी, राइस के बहुत सारे रेसिपीज। तो डिफरेंट हर एक रेसिपी के लिए इडली का अलग राइस था, पोहा का अलग राइस था। तो ये डाइवर्सिटी विद इन क्रॉप एंड विद इन फूड रेसिपी एंड विद इन द एग्रोक्लाइमेटिक जोन थी जो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है आज। तो इसीलिए इसका फादर एंड मदर का प्लेट में वो 27 तक आ गया एंड बच्चों के प्लेट में 7। और 7 में भी क्या था, ये महाराष्ट्र में हमने किया था सर्वे, शिमला मिर्च, गोभी, कॉलीफ्लावर, देन कैबेज एंड देन पोटैटो, जो वो रीजन का इंडिजिनियस फूड ही नहीं था। और शहर में तो पिज्जा, बर्गर, फूड प्लेट क्या होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, मुझे भी ज्यादा पता नहीं अभी, ठीक है ना। तो ये इतना प्रॉब्लम, तो जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी नैरो हो गई, हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो फूड प्लेट को कैसे डाइवर्सिफाई अगेन करें, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट प्लीज। जो भी मार्केट में फूड आ रहा है वो कॉर्न बेस्ड फूड है, कॉर्न से कुछ भी हम बना सकते हैं, अभी ऐसा सब हो गया है। एंड दीज आर द हाइब्रिड कॉर्न्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा है, स्टार्च ज्यादा है। वी हैड आइडेंटिफाइड डिफरेंट मेज टाइप विच आर रिच इन न्यूट्रिशन ऑल्सो। तो पूरा वर्ल्ड बोलता है कि मेज इज ओरिजिन ऑफ मैक्सिका, लेकिन आज हम ये लेवल तक आ गए कि इंडिया ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज। पता नहीं कितने साल पहले आया होगा और वहां पे वो डोमेस्टिकेट हो गया। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है। नेक्स्ट प्लीज। यदि देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड एफएओ का स्टेटमेंट है कि अराउंड 75% डाइवर्सिटी ऑलरेडी विद इन क्रॉप्स की लॉस हो चुकी है। जो भी बची है उसको कंजर्व, रिवाइव एंड अगेन यूज में लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास टन्स ऑफ ग्रेन्स है, फूड है, लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिशन हमारे घर पे है। एक तो ओवर न्यूट्रिशन है, दूसरा माल न्यूट्रिशन। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज तो है ही हमारे पास। बारिश होगा तो इतना होगा कि 1.5 मीटर पानी भी भर सकता है एंड एट सम प्लेसेस देयर में बी नो रेन, ओनली मॉइस्चर। हम क्या ग्रो करेंगे। टेक्नोलॉजी के पास आंसर नहीं है। नॉट मोर देन 4,000 2,000 varieties developed by our research institutions, but in nature there are thousands, lakhs of origin, still it is there. Next please. So these are the issues. हम क्या ग्रो करेंगे। है हमारे पास टेक्नोलॉजी के पास, देयर इज नो आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। माल न्यूट्रिशन, फूड पैकेट्स बांट के माल न्यूट्रिशन खत्म होने वाला नहीं है।
agri and nutrition, how we can link it together. Agriculture is something different now and nutrition program is something different. इसको कैसे link करें? तो food system as a whole ये हमारे लिए आगे का challenge है. Next please. These are the rice. मुंबई में वाड़ा कोलम पता है आपको, अम्बे मोहर पता है, ठीक है, और सुरती कोलम, इंद्रायणी, देन और अम्बे मोहर, बासमती, ठीक है. आपको पता है वाड़ा कोलम जो मुंबई को बहुत बेस्ट राइस मिलता है, इज इट ओरिजिनल है? 99.9% डुप्लीकेट है, क्योंकि वाड़ा कोलम इज फ्रॉम अ वाड़ा ब्लॉक ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट. ओके, and I had surveyed 35 villages. I had listed only 200 farmers and total area not more than 500 acre. तो पूरी दुनिया के हर एक मॉल में वाड़ा कोलम मिल रहा है. तो we are eating brands not a food. and उसमें भी हाइब्रिड वाड़ा कोलम आ गए. तो उसका ओरिजिनल शायद आप में से किसी ने खाया होगा वाड़ा कोलम. ओरिजिनल वाड़ा कोलम की स्पेशलिटी कौन से भी इंटरनेशनल गाइडलाइन में नहीं है, वो है लोगों के दिमाग में. उसका ओरिजिनलिटी क्या है? उसके ऊपर हमने राइस बनाया कि उसके ऊपर दाल डाल दी कि जितना भी राइस डालेंगे वो सोख लेता है. ऐसा कोई टेस्ट कौन सा भी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइन में है नहीं, वो लोगों के. तो अभी हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं ओरिजिनल. आफ्टर 3-4 ईयर्स शायद आपको ओरिजिनल वाड़ा कोलम मिल सकता है. तो ये है राइस की डाइवर्सिटी. जैसे बोल रहे थे अबाउट 350 ओरिजिन्स आज तक हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ा कामयाब हो चुके हैं. इसमें राइस फॉर डिलीवरी वीकनेस, राइस एज अ इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई, राइस फॉर फ्रैक्चर रिकवरी, राइस फॉर फीवर रिकवरी, इडली के लिए अलग राइस, पोहा के लिए, पार बॉयल राइस. तो हर एक पर्पज के लिए एक अलग राइस था. राइस फॉर लैक्टेटिंग मदर, वो अलग राइस था. तो ऐसे सारे हमने आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं. तो ये डाइवर्सिटी इतना लॉस हो चुका है. तो राइस इज नॉट जस्ट अ फूड टू ईट, इसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी की जिससे हर एक एंड यूज हर एक का अलग था. नेक्स्ट प्लीज. आज ज्यादातर हम मिलेट के बारे में समझने के लिए जानने के लिए आए. सो दीज आर द मिलेट क्रॉप. We know ragi, but there are different millet types. First one is the ragi, second is the foxtail millet, then third little millet, जिसको वरई भगर बोलते हैं, then proso millet, brown top millet, then barnyard millet. Next please. sorghum. महाराष्ट्र की यदि हम बात करेंगे, ज्वार जिसको बोलते हैं, ज्वार का रोटी खाते हैं ना हम, और बहुत सारे रेसिपीज भी हो रहे हैं जो हमारे फूड प्लेट से बहुत कम हो चुका है, क्योंकि व्हीट हमारे फूड प्लेट का पार्ट बन गया. इवन एट विलेज लेवल आल्सो एंड इवन अर्बन लेवल आल्सो, क्योंकि 2 रुपीज व्हीट हर एक घर में आज जा रहे हैं. तो ये हमारा सोरगम डाइवर्सिटी खत्म. हम सर्च किया कि कहाँ सोरगम होता है पूरे देश में. तो हमारा डेटा जो बता रहा है कि 250 मिलीमीटर में भी ज्वार आता है एंड 5000 मिलीमीटर में भी सस्टेन होने वाले टाइप है. तो रेंज देखिए कितना है. तो सोरगम वन ऑफ द मेजर फूड हमारे प्लेट का था सिंस ईयर्स. तो सोरगम के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि गुड सोर्स ऑफ डाइट, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है. तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम जिनको है उनको सोरगम खाना ही है. देन एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा है इसमें. देन डायबिटीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड सोरगम है. सोरगम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है. नेक्स्ट प्लीज. तो दिस इज द सोरगम डाइवर्सिटी विच वी आइडेंटिफाइड डिफरेंट ट्राइबल लोकेशन अक्रॉस महाराष्ट्र. हर एक के नाम भी बहुत सारे अलग है. दगड़ी, दगड़ी मीन्स स्टोन, ठीक है, उसका एकदम हार्ड होता है पेनिकल. तो नाम के पीछे भी साइंस है. नहीं तो हम आज सब कोड लैंग्वेज में एवरीथिंग इसको सब दबा के रखा है क्योंकि IPR पेटेंट के नाम से. लेकिन दीज आर द ओपन सोर्स सिस्टम्स एंड नॉलेज. डुकरी, देन टाड़की, हमारा सर जैसा ये है, इसके लिए उसका नाम ये है. चिकनी, चिकनी मीन्स स्टिकी, स्टिकी, इतना स्टिकी कि उसका रोटी बना ही नहीं सकते. तो हम सर्च किया कि क्या बनाते हैं लोग. तो ये पापड़ उसका बहुत अच्छा था. ठीक है, वी हैड गॉट 1 पेनिकल ओनली दैट चिकनी. देन नाउ इट्स इन 400 acres.
2010 में हमने ये सर्च ये किया था अलग अलग लोकेशन पे, तो हर एक का कुछ अलग नाम है और नाम के पीछे का भी साइंस बहुत बड़ा है, तो ये इटिमोलॉजी के इसमें अंडर आता है। तो वी हैड डॉक्यूमेंटेड ऑल, क्योंकि फाइनली IPRN इसमें बासमती का जो एग्जाम्पल देते हैं, बासमती को टैक्सामती कर दिया, शायद आपने पढ़ा भी होगा, US पेटेंट जो गया बासमती एंड टैक्सामती, ठीक है, ग्रेन तो सेम ही था लेकिन वो स्वेलिंग परसेंट में पकड़ा गया कि इंडियन बासमती जो है उसका स्वेलिंग ज्यादा होता है, लंबाई, ठीक है, आफ्टर कुकिंग है, ठीक है ना। वैसे हल्दी का भी, हल्दी सिंस ईयर्स एजेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन पूरा कर रहे हैं, देन द इंफॉर्मेशन शुड बी इन द ओपन सोर्स, कि ये पूरी सबकी है ये नॉलेज सबका है, बायो रिसोर्सेज सबके, इसको स्प्रेड इतना करो कि इसका मोनोपोली खत्म हो जाए, एंड फार्मर्स एंड एवरीथिंग, कंज्यूमर को भी मिले एंड फार्मर को भी ऐसे ऑप्शंस मिले। नेक्स्ट प्लीज। हाइट 15.5 फीट हाइट, तो फूड भी है, फॉडर भी है। ये लास्ट मंथ का फोटोग्राफ है ठीक है, ये यहाँ तक है शायद, मुझे भी अभी दिखा, हाँ ये हाइट है इसका। अभी जो वैरायटीज आए हैं मार्केट में, नॉट मोर देन 3.5 फीट हाइट, तो कहाँ से फॉडर लाएंगे? फॉडर नहीं है तो हम हमारे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को कैसे ये करेंगे? लाइव स्टॉक, फॉडर नहीं है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कम हो गया है, ठीक है ना। एंड देन फॉडर क्रॉप्स आर समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेन क्रॉप्स आर समथिंग डिफरेंट, इसको हम कैसे ये करें? तो हमें फूड भी चाहिए, फॉडर भी चाहिए, एंड दीज आर द डिफरेंट रेसिपीज। बच्चों को क्या देते थे वो न्यूट्रिशन के लिए? इसके लड्डू बना के देते थे सोरगम के। एंड 1972 का जो मैं एक स्टडी कर रहा था कि 1972 का जो फेमाइन हुआ था, व्हाट दे हैड, उन्होंने क्या खाया होगा? तो इनके घर में क्विंटल्स ऑफ एक ग्रेन थे, और जस्ट थोड़ा सा लेना है, लिक्विड ग्रेल बनाना, यानी नमक डाल के पानी गर्म करके उसके ऊपर वो कितने महीने जिंदा रहे हैं लोग। तो इतना हाईली न्यूट्रिशियस एक सोरगम टाइप है। नेक्स्ट प्लीज। बाजरा अनदर मिलेट, पर्ल मिलेट और स्पाइक मिलेट, वो भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन कंटेंट भी हायर है, इजीली डाइजेस्टिबल है, फोलिक एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी महाराष्ट्र में ओनली एक ही वैरायटी बची हुई है बाजरा की, एक ही बची हुई है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है। रागी के बारे में तो आप सबको पता है, रागी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है, इवन एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द मेजर फूड फॉर डायबिट्स अभी हो गए, कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने में बहुत ही काम आती है। नेक्स्ट प्लीज। ये डाइवर्सिटी है, तो हमने सर्च किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, अभी 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागी हमारे पास है विद इन रागी। दिस इज डाइवर्सिटी, उसमें कैल्शियम रिच रागी, आयरन रिच रागी, एंटीऑक्सीडेंट रिच रागी। तो अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि स्लोपी लैंड पे, जहाँ पे कुछ नहीं आता है वहाँ पे रागी होता है, ठीक है, तो वहाँ गुड यील्ड भी कैसे मिले, न्यूट्रिशनली रिच भी है, सॉइल का अच्छी फर्टाइल भी करें, फॉडर भी मिले। नेक्स्ट प्लीज। ये भी आपको पता है, ग्रेन शायद मैं फोटोग्राफ नहीं डाल सका इसमें, ये वरई है, वरी जिसका राइस हम बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। या तो इसका भी स्टोरी है। ये 2011 में शाहपुर एक ब्लॉक है ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पे एक फार्मर के यहाँ पे ऐसे जा रहे थे और वो बोले कि साहब ये बहुत अच्छा है, आप ये लोगों के पास फैलाओ, ठीक है। एक ही प्लांट दिया था ऐसा, एक दिया था। तो 5 years ऑफ आवर कंटिन्यूस प्यूरिफिकेशन अपग्रेडेशन वर्क अभी 2000 हेक्टर में स्प्रेड हो गया सीड, अभी वो लैक्स ऑफ पीपल के पास चला जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड यील्डिंग, फार्मर को बहुत अच्छा पैसा मिला। 52 रुपीज पर केजी रॉ वरई को अभी ये मिल रहा है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ये पॉजिटिव थिंग हो गई है पाकिस्तानों के लिए, मिलेट का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड, फंक्शनल फूड, न्यूट्रिशियस फूड, सो वरई इज वन ऑफ देम। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हमने आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट प्लीज।
या ये कोडो मिलेट है, इसका यदि देखेंगे फाइबर कंटेंट राइस के कंपैरिजन में, राइस में 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम फाइबर कंटेंट है। ये कोकन रीजन में ग्रो होता था पहले, अभी 15 या 20 फार्मर बचे हुए हैं ये क्रॉप लगा रहे हैं महाराष्ट्र में। कर्नाटका में कुछ जगह पे अभी स्प्रेड हुआ है। रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज को कम करने में काम में आता है, एंड देन जॉइंट पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द फूड था। नेक्स्ट प्लीज। बार्नयार्ड मिलेट, ये हिली रीजन में जहां पे दूसरा कौन सा मिलेट नहीं होता है, देयर दिस मिलेट कैन ग्रो इन सातपुड़ा हिल्स ऑफ महाराष्ट्र। सो यहाँ पे इसलिए भी रिच इन फाइबर कंटेंट है, डायबिटीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड है, वेट रिडक्शन के लिए भी वन ऑफ द अभी साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि इसका कंजम्पशन से वेट रिड्यूस होगा। एंड देन वी कैन कीप दीज ग्रेन्स, इंटैक्ट ग्रेन्स फॉर एटलीस्ट 35 to 50 ईयर्स। एक ही ऐसा ये क्रॉप है कि जिसका हम सीड इतने साल तक रख सकते, ग्रेन नॉट अ सीड। तो इसका कवर बहुत हार्ड होता है। एंड देन नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का पावरा कम्युनिटी, हम घर पे जाते हैं तो पूरा झोपड़ा दिखता है, लेकिन ऊपर इनके घर पे एटलीस्ट 5-10 क्विंटल एक ग्रेन होते, क्योंकि दे नोज फूड सिक्योरिटी, कैसे क्या खाए हम ऐसे एडवर्स सिचुएशन में। एटलीस्ट 5 ईयर का स्टॉक होता है उनके यहाँ पे ये मिलेट का। तो ये विजडम का रोल इसमें है कि क्यों रखा है उन्होंने आज भी उसको जिंदा। तो वजह है कि उसका स्टोरेज लाइफ बहुत ज्यादा है ग्रेन्स का। नेक्स्ट प्लीज। ये इसका क्रॉप अभी लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन में, उसमें हमने सिलेक्शन किए, साइंटिफिक वर्क किया, अभी ये स्प्रेड हो रहा है क्योंकि यील्ड बहुत कम हो गया था, मिक्सचर हो गए थे, तो अभी ये पूरा पार्टिसिपेटरी वे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। देन फॉक्सटेल मिलेट, ये भी शायद आपको पता होगा कि हमारा पितृपक्ष में यूज होता है ज्यादातर। इसका राइस बनाते हैं, भगर बनाते हैं, तो ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस करने के काम में आता है। इसका प्रेजेंटेशन बाद में शेयर करेंगे ग्रुप के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज। एंड अलॉन्ग विथ अदर साइंटिफिक डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। ये भी एक मिलेट का ही टाइप है, लिटिल मिलेट। डाइजेस्ट इजीली डाइजेस्टेबल है, ये इनहांस करता है डाइजेस्टिबिलिटी को, आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। सो दिस इज द न्यूट्री प्रोफाइलिंग। यहाँ पे यदि देखेंगे हम राइस के कंपैरिजन में, राइस में 0.2% 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम फाइबर। तो यदि देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू राइस एंड व्हीट, in fiber content, even calcium in rice around 45 milligram per 100 gram, and then in case of finger millet more than 376 to 5. So like that each millet has its own nutrition benefits, and then इसके बहुत सारे recipes भी है। Next please. So the, yeah, previous slide please. Yeah, next please. So abhi what we are doing, Prabhuji also shared about our program. So our program base is 4C approach: conservation of diversity, whatever exists till now, identify it, then cultivate it through research, iska yield kaise improve kare, then scientific research on nutrition, genomic testing, and then everything for agromorphology, देन कंजम्पशन में कैसे आए एट कम्युनिटी लेवल भी, क्योंकि गांव के फूड प्लेट से भी ये गायब हो चुका है। जैसे वो बच्चों का 1 महीने सर्वे बताया था, तो वो विलेज लेवल पे भी कंजम्पशन में कैसे है। एंड देन जो सरप्लस होगा उसका मार्केट लिंकेजेस थ्रू ब्रांडिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये हमारा वर्क 2008 में हमने शुरू किया था। अभी अराउंड 650 ओरिजिन्स हम आइडेंटिफाई किए अलग अलग लोकेशन पे। टोटल 7 सीड सेंटर्स बनाए हैं महाराष्ट्र में। इसमें राइस, मिलेट्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, देन रूट्स, ट्यूबर्स, जो नीचे डाइवर्सिटी हमने पालघर डिस्ट्रिक्ट का एग्जिबिट किया है। तो ऐसे अलग अलग लोकेशन पे ये काम चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। This is not a research station photograph. This is from a tribal location, जहाँ पे वारली एंड कोकना ट्राइबल। सो हमारी एक सोच होती है कि गांव के लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, दे कैन डू बेटर देन अस। उनको माइग्रोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, जीनोमिक कुछ पता नहीं, बट दे नो व्हाट दे वांट। यहाँ पे वो आते हैं,
thousands of people select करते हैं varieties because we have very limited approach of selection of crops and varieties. But they उनको पता है land type कैसा है, soil type, good yielding type कौन सा है, pest disease resistant चाहिए, टेस्ट के लिए अच्छा भी चाहिए, मार्केट में बेचने के लिए अलग टाइप चाहिए, हमारे घर के खाने के लिए अलग चाहिए, फॉडर भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सॉइल को भी देखना है हमें. ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेन देख कर आ गए, काट दिया, बेच दिया, ऐसा नहीं है. तो ये हमारे जो अप्रोचेस है हमें बदलने पड़े फॉर सो पार्टिसिपेटरी वेज ब्लेंडिंग कम्युनिटी नॉलेज एंड विजडम विथ साइंटिफिक. तो ये हमारा एक काम शुरू हो गया. नेक्स्ट प्लीज. ये सिस्टम है हमारी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर. क्या बोलती है, पूरा लैंड को प्लान करो और उसके ऊपर ही क्रॉप कल्टीवेशन लो. बट दे हैव देयर ओन सिस्टम फ्रॉम टॉप हिल टू बॉटम. कौन से प्लेस पे विच क्रॉप टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना है, क्वालिटी फूड भी आना है, फॉडर भी आना है, और पूरा बायोडाइवर्सिटी को भी कॉन्जर्व करके रखना है. तो रिवाइविंग दिस सिस्टम, यही हमारे पास एक ऑप्शन अभी है. नेक्स्ट प्लीज. हम कर रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट इन कल्टीवेशन, यील्ड कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका कंपैरेटिव साइंटिफिक कर रहे हैं. तो लोग सीइंग इज बिलीविंग. आज तो हम पावर पॉइंट में बहुत अच्छा लग रहा है, फार्मर बिलीव नहीं करता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फोटोग्राफ. सीइंग इज फील्ड में, तो इसीलिए फील्ड में पूरा वर्क ऐसे सेंटर्स बनाते, दिखाते लोगों को. हमारी पूरी टीम गांव के लेवल पे ये काम करती है. नेक्स्ट प्लीज. लोगों को सिखा रहे. ओनली मल्टीनेशनल्स एंड सीड कॉर्पोरेशंस प्रिपेयरिंग अ क्वालिटी सीड. व्हाई नॉट आवर फार्मर एट विलेज लेवल, ग्रास रूट लेवल? दे आर डूइंग बेटर, बेस्ट क्वालिटी सीड्स एट विलेज लेवल ओनली. यहाँ पे गांव की महिला, दे आर सिलेक्टिंग बेस्ट पेनिकल्स, सिलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन, जेनेटिक्स, उनके अंडरस्टैंडिंग से वो सिलेक्शन कर रहे हैं सारा. नेक्स्ट प्लीज. ये फिंगर मिलेट का पूरा फील्ड है. या ये फिंगर मिलेट जो देख रहे हैं, ये फिंगर मिलेट रागी का खेत हम देख रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. यहाँ पे ये राइस फॉर डिलीवरी वीकनेस, इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर राइस, लैक्टेटिंग मदर के लिए, ये भी आइडेंटिफाई हो गया है थ्रू साइंटिफिक रिसर्च. इसको अभी आगे जाके मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट प्लीज. ये सारे बीन्स है, जो भी हमारे पास बीन्स है, हर एक को पानी चाहिए. बट दीज आर द टाइप्स विच कैन ग्रो ऑन रेसिडुअल मॉइस्चर. पानी नहीं हो तो भी मॉइस्चर पे यह आ जाएगा. नेक्स्ट प्लीज. इसमें हॉर्स ग्राम जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो हमारे फील्ड में से गायब हो चुका है. कुड़द बोलते हैं, कुड़द या हुलगा भी एक वर्ड है, मराठी में हुलगा, कुड़द हिंदी में, एंड हॉर्स ग्राम. इसमें अराउंड 17% वेट बाय वेट प्रोटीन कंटेंट है. और हम प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए प्रोटीन पैकेट्स खा रहे हैं. These are the rich source of protein. इतने सारे प्रोटीनियस फूड अपने पास है अभी. नेक्स्ट प्लीज. इसमें 3 मंथ हार्वेस्ट वाला, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर कंटिन्यूस. तो प्रोटीन सिक्योरिटी घर में आ सकती है. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हर घर में ये सारे सीड्स कैसे जाए कि ईयर राउंड उनको प्रोटीन फूड मिले. नेक्स्ट प्लीज. ये मेज के बारे में जो बात करें, these are not plastic maize, these are indigenous maize. So it has taken around 8 years to select, purify, multiply. Next please. And each one has something different nutrition. Again next. न्यूट्री गार्डन, जैसे टेरेस गार्डन आप करते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, सो ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्री फूड. सो आपके लेवल पे भी पॉट में भी बहुत सारी कर सकते हैं चीज़ें, बैकयार्ड हो गई तो वहाँ पे भी कर सकते हैं. तो ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, सो उसके पैकेट्स बना रहे हैं. तो वो जो ग्रुप है बीच में, तो दे हैड अ सेल सीड ऑफ 27 lakhs फ्रॉम द विलेज इन कोविड पीरियड. ठीक है, देर इज नो एनी बिल्डिंग, नो एनी packing center in the village. They had prepared a quality seed of vegetables and supplied to nearby cities, Pune, Nasik, and different government programs also, or nutri gardens. Next please. So this is again very important source of nutrition. जंगल का खाना, फॉरेस्ट फूड. लेकिन हमारी सोच अभी बने कि जंगल में जो है वो अच्छा नहीं है, पॉइजनस है. बट दे नोज बेटर, उसमें पॉइजनस मैटर भी है, उनको पता है उसको कैसे, वो अल्कलाइड्स को कैसे निकाले. रूट्स एंड ट्यूबर बहुत अच्छे टाइप से रीच, इसमें कुछ ट्यूबर्स हैं जो डायबिट्स, फूड फॉर डायबिट्स के लिए भी
ये हुए साइंटिफिकली हुए कि वेरी स्लो रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे भी कुछ रूट्स एंड ट्यूबर्स आइडेंटिफाई हो गए कि एक ग्लास ले लिया उसका लिक्विड ग्रेल और 1 और 2 तो दिन भर खाना खाने का जरूरत नहीं है, तो एनर्जी भी मिलेगी एंड देन विल गेट अ गुड फूड आल्सो. नेक्स्ट, दीज आर द वाइल्ड वेजिटेबल्स, नॉन कल्टिवेटेड फूड. तो आगे जाके इन क्लाइमेट चेंज these are the source of food. Tree as a source of leafy vegetable, tree as a source of oil. तो we are working on that also कि इसको कैसे प्रमोट करें, क्योंकि अभी नीचे का जमीन शायद नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ऊपर का जमीन चाहिए. एक ट्री 2 क्विंटल सीड 50% ऑयल कंटेंट, इतना क्वांटिटी हमें मिल जाएगा फॉर इसके लिए. इवन इसमें वेजिटेबल्स भी इसको ड्राई करके रख सकते हैं, वो भी काम हमारा साइमल्टेनियसली शुरू है. तो सरप्लस जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग करके इसको ड्राई करके पैकेजिंग का भी आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी भी बचनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट सोर्स ऑफ इनकम भी मिले, एंड इसको प्रमोट भी कैसे करें. नेक्स्ट प्लीज. दीज आर द रियल साइंटिस्ट फ्रॉम ग्रास रूट. जो पद्मश्री की बात मैं कर रहा था, ये पद्मश्री जी है हमारी, स्कूल में तो कभी गई नहीं बट रिच सोर्स. दूसरी जो है जिनको नेशनल जीनोम अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड इनको मिला है. ऐसे ऐसे हर एक गांव में हर एक घर में ऐसे साइंटिस्ट आज भी है, तो डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे हैं. ऐसे कौन इनोवेटर है जिनको सपोर्ट की भी जरूरत है, तो इनको सपोर्ट करेंगे तो ही डाइवर्सिटी बचेगी, एंड इनको हम कैसे आगे लेके जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट साइड का जो है फोटोग्राफ वो नेशनल जीन बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंटरनेशनली, बट वी नीड अ जीन बैंक एट विलेज लेवल. एक सीटू जीन बैंक है, वी कैन कीप सीड फॉर 75 years, बट वी नीड लाइव जीन बैंक इन द फील्ड विद द पीपल. ठीक है, एंड इट शुड बी एवरी ईयर इट शुड कल्टिवेट एंड इवॉल्व, बिकॉज ऐसा नहीं कि ये जीन बैंक में हमने पैसा बंद रखा है अपने बैंक्स में, वैसे कि ये एवरी ईयर इसको जाना है, क्योंकि क्लाइमेट रेजिलेंस आना इम्पोर्टेंट है एंड इजी अवेलेबिलिटी. वहाँ वो जीन बैंक से वहाँ सिक्योरिटी है एकदम, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये ओपन सोर्स भी है. ठीक है ना, तो ऐसे सेंटर्स हमें आगे जाके बनाने हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स आल्सो. नेक्स्ट प्लीज. on cultivation through organic, seed to harvest, harvest to post harvest to plate, ये इसके लिए पूरा ऑर्गेनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम बना रहे हैं, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो, क्वालिटी प्रोड्यूस भी हो. क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का यह है कि नाइट्रेट % बढ़ गया तो न्यूट्रिशन डाउन हो रहा है हमारा फूड ग्रेन्स का. ठीक है, पेस्ट डिसीज आ रहा है, तो सॉइल को भी हेल्दी रखे और नॉन केमिकल कल्टिवेशन ऑल दीज इंडिजिनियस रिसोर्सेज. नेक्स्ट प्लीज. रिवाइविंग ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज, उनके पास भी बहुत अच्छे रेसिपीज, वो हम अभी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली हर एक क्रॉप्स के. नेक्स्ट प्लीज. ऑल्सो सम मॉडर्न रेसिपीज जो आज हम टेस्ट भी करने वाले हैं. यस प्रभु जी. या सो फिंगर मिलेट, पापड़, लड्डू, रोटी, खीर, लिक्विड ग्रेल, चकली, अम्बील, the number of recipes we had documented this thing. Next please. Next. Also आज तो हम इडली डोसा सब बना रहे हैं, नीचे हमें टेस्ट भी करना है आज बहुत सारे रेसिपीज. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. Also we are developing some products through standardization and nutri profiling, FSSI, everything, so that communities can get good income through these sale of these products. Next please. सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए है कि ये नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. स्कूल्स के बच्चों को तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस we know all about the world, but our region, our agroecology zone, we don't know anything about our food system. So seed, soil, everything we are teaching in the schools, even colleges and institutions. Next please. And then कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे आज हम यहाँ पे है वैसे हर अलग अलग सिटीज़ में भी कर रहे हैं, तो इसका डिमांड भी बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसका अवेयरनेस, फूड एज अ मेडिसिन,
नॉट अ फूड जस्ट खाने के लिए है। तो ऐसे न्यूट्रिशनल फंक्शनल फूड का अवेयरनेस, इसलिए फूड फेस्टिवल, ग्रेन फेस्टिवल, राइस फेस्टिवल, मिलेट फेस्टिवल, इवन विलेज लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपको इनवाइट हम करेंगे डेफिनेटली, एंड देन क्योंकि वहाँ आके, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके प्लेट से भी फिंगर मिलेट गायब हो चुका है, क्योंकि पुअर मैंस फूड बोल रहे वो, ये जिनके घर में नागली का ब्लैक रोटी बन रहा है, बोलते कि हम ये गरीब लोगों के घर पे, क्योंकि व्हीट का रोटी बहुत अच्छा है। तो जब शहर के लोग गांव आते हैं एंड दे सी, अरे ये नागली का रोटी खा रहे हैं, फिंगर मिलेट का रोटी ये खा रहे हैं, नहीं ये अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा सोच बिहेवियरल चेंज की भी बहुत जरूरत है इस, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ये सब इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें भी हम साथ में करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है। तो हमारा रोल भी हम कैसे डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ एक इंस्टीट्यूशन, एक साइंटिस्ट और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक कोई गवर्नमेंट सिस्टम, हर एक का रोल कुछ न कुछ इसमें है। तो वो अपने को ही डिफाइन करना है। एंड दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम। हम लिंक कैसे रहे साथ में, एंड हाउ वी कैन डू अ बेटर थिंग्स फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। इसमें हर एक का रोल है। साइंटिफिक चीज़ों को हम कैसे आगे लेके जाए, अवेयरनेस लेवल पे, ब्रांडिंग लेवल पे स्प्रेड करने के लिए इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, हर एक चीज़ में हमें आप सबकी ज़रूरत है। और ये एक मास मूवमेंट कैसे बने, तो ही ये काम बढ़ेगा और कम समय में हम रीच हो सकेंगे ग्रास रूट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। थैंक यू।